Okay. Good afternoon, class. This is the first class in your online session for data interpretation and visualization using Python. Third unit is your data manipulation using pandas, which is how to create data frames, data series, how can we load data into a pandas data frame. Fourth one is your basic plotting and visualizing, how we can visualize the data points in different plots, like as a line chart, bar chart, pie chart, box plot, scatter plot, and the last one is your data aggregation and group operations, which will basically consisting of how to find out the sum, mean, median, and other aggregate functions. Now, if I start with the programming, what is programming? Programming is basically how you are writing steps so that a computer can understand. आप कुछ स्टेप्स लिख रहे हो जो कि कंप्यूटर को समझ में आने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वी एज अ पर्सन कम्युनिकेट इन इंग्लिश. कुछ लोग हिंदी में बात करते हैं, सम कम्युनिकेट इन देयर मदर टंग लाइक तमिल, तेलुगु, मलयालम. कुछ लोग पंजाबी में बात करते हैं, कुछ लोग मराठी में बात करते हैं, एंड वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस. बट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर we need a programming language, right? That programming language is nothing but a set of instructions. एक step by step instructions होते हैं, step by step commands होती हैं, जिसके through computer starts working on to solve certain problem, certain real life problem or certain automatic task. We learn these programming languages are used to create various software applications, websites, games, and as well as to automate certain tasks. For example, we program a simple washing machine. हमारे घर में washing machine है. अगर हम automatic washing machine की बात करें या semi automatic washing machine की बात करें, it is programmed. If it is programmed to stop after 15 minutes, it will stop. Even like fully automatic washing machine, it is programmed कि after 15 for the first 5 minutes it will take the water from the tap. Next 10 minutes it will perform the washing of the clothes. After that it will drain out and then start rinsing the clothes, and then it will drying, and then it will dry, and after a certain amount of time performing all these operations it will stop. Similarly, in everyday life, we have our computers that are programmed to automate certain tasks. We have calculator to perform calculations. So these are done through the programming part. Now we can always
divide the programming languages into two categories. One is your low level language and another is your high level language. Now, this low level language is basically the programming language or the programming part, which includes the machine code as well as the assembly language. It is used to communicate directly with the hardware. Right. While the high level programming languages like your Python, Java, C++, C, PHP, they are human readable, easier to understand, and moreover, they communicate with a middleware like operating system or some interpreter, and after that, these languages are converted to the machine language. If I talk about the large number of programming language at present, we have many programming languages, and at present Python is at the number one. After that, we have Java, we have JavaScript, C Sharp, C++, PHP, and Objective C and Kotlin. Now, if I start with what is the Python? Python is basically a programming language. It is an interpreted programming language and it is a high level language. What are its features? Why everyone is moving towards Python? Earlier, we all were learning C programming language. Then we moved to C++. Then we moved to Java, and then we came to and then we started to learn PHP. At present, everyone is learning Python. Now, what are its basic features? Why it is so in demand? ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी का मेन रीजन होता है कि दैट इट इज easy to write and easy to understand. Right? If a programming language is difficult, no one will be able to understand it or no one will be able to study it or learn it. So the Python, the most important feature is that it is easy to write and easy to understand. Next is it is portable. Portable means I can make an application in Python. I can install it in the Windows operating system. I can install it in Android operating system. I can install it in Ubuntu operating system. I can even use, if it is a web application, I can use it as a web application and access it from the internet from everywhere. So portable is, it can be easily transported from one machine to the other machine. It can easily be installed. Next is scalable. Scalable is, if I have made a simple small program, I can make it large to solve a higher problem. Scalable means हो गया कि आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा है, पाइथन में कोई एप्लीकेशन लिखी है, आप उसको अभी आपने उसको एक छोटी सी स्मॉल प्रॉब्लम के लिए लिखा है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो बिगर प्रॉब्लम के लिए या बिगर टास्क सॉल्विंग के लिए. Another important feature of Python is object oriented. We can program and we can program using the classes and objects. It supports large number of libraries. Libraries is basically a collection of predefined functions. So if I have to find out the average of 500 numbers, so I do not have to write a program on my own. I can easily use a library, for example NumPy, and I can use it function mean, right? And above all, Python is free and open source.
if I talk about this, I just talked about what are the important features of Python, why Python is being used highly and why it is being learned by a large number of people. Next, because it is easy to write, portable, scalable, and and it has its own GUI interface. Now, what are the various areas, what are the different applications, what are the different arenas where Python is being used largely? अगर हम बात करें कि Python कहाँ यूज हो रहा है, सबसे पहले तो Python यूज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. सबसे इम्पोर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में Python यूज हो रहा है. चैटबॉट बनाने के लिए यूज हो रहा है, रोबोट्स को ऑटोमेट करने के लिए यूज हो रहा है. उसके बाद डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज हो रहा है. डेटा एनालिटिक्स, हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, टेराबाइट्स में डेटा है, गीगाबाइट्स में डेटा है, उसको एनालाइज करना है. फॉर एग्जाम्पल अमेजन है, अमेजन के पास 1 मिलियन ऑफ यूजर्स हैं जो कि डेली बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, कौन से, जब डिस्काउंट आता है तो कितना ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, किस टाइप का खरीद रहे हैं, किस लोकेलिटी के लोग कौन सी चीज को ले रहे हैं. वो सारा डेटा जो है वो बहुत ज्यादा डेटा है. उस डेटा को एनालाइज करने के लिए वी आर यूजिंग पाइथन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फिर हम डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं. डेटा विजुअलाइजेशन की डेटा किस तरीके से, अगर मैं उस डेटा को एक स्कैटर प्लॉट या बार ग्राफ के थ्रू विजुअलाइज करूँ और देखूँ कि क्या सेल्स जो है, सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट, कोई भी सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. नेक्स्ट, पाइथन यूज हो रही है प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस के लिए. प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस, आप चैटबॉट बना रहे हो, आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, या आप वेबसाइट बना रहे हो, वेब डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हो, आप गेम्स बना रहे हो, डिफरेंट गेम्स में यूज हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मोरओवर इट इज बीइंग यूज्ड एज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. हम कुछ भी गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में, जैसे गूगल पे सर्च कर रहे हैं, याहू पे सर्च कर रहे हैं, बिंगो इज अ सर्च इंजन, उसमें सर्च कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से हमको एक्यूरेट रिजल्ट निकाल के देता है. ठीक है, सो पाइथन को हम, ये हमारे कुछ ऐसे स्पेसिफिक हाईली यूटिलाइज्ड एरिनाज हैं जहाँ पे पाइथन इज बीइंग यूज्ड लार्जली. पाइथन को हम यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज, let's start with how we can solve a problem. We have many real life problems. Real life problems is like if I have a large number of database, a large number of websites and I am searching on Google. मैं अगर Google पे सर्च कर रही हूँ तो वो एक्यूरेट रिजल्ट कौन सा निकाल के देगा. ठीक है, तो ये एक हमारी प्रॉब्लम हो गई. अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी होती है, हम पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, राइट. उस प्रॉब्लम को समझने के बाद हम उसकी प्लानिंग एंड डिजाइनिंग करते हैं और फिर एक उसका सूडो कोड लिखते हैं. सूडो कोड लिखना मतलब यू आर राइटिंग इट इन योर ओन लैंग्वेज. इट कुड बी इन इंग्लिश, इट कुड बी इन हिंदी. आप उसको अपनी किसी एक लैंग्वेज में एक उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हो कि आप ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे. फॉर एग्जाम्पल, हमारी प्रॉब्लम है, हमको एक कैलकुलेटर बनाना है. अब इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए इसको पहले हमें समझना पड़ेगा कैलकुलेटर में क्या क्या फंक्शंस हैं. एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, उसकी मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी. फिर उसके बाद उसका एक सूडो कोड लिखना पड़ेगा. सूडो कोड में क्या आ गया कि पहले हम डेटा को इनपुट लेंगे. अगर मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि मैं उन 2 नंबर्स को लूंगी. पहले मैं यूजर से लूंगी. फिर उसके बाद we translate those pseudocode to our programming language. Translating to pseudocode to our programming language. Suppose अब मैंने डिजाइन कर लिया, प्लान कर लिया, सूडो कोड लिख लिया, अब मैं उसको पाइथन में कोड कर रही हूँ. कोड करने के बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, डीबगिंग करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने प्रोग्राम तो एडिशन का बनाया था और गलती से वहां पे माइनस का साइन डाल दिया, या मैं ऐड कर रही हूँ 500 + 500, तो क्या वो एक्चुअली 1000 रिजल्ट दे रहा है या वो कुछ
गार्बेज वैल्यू दे रहा है। कई बार क्या होता है, हमने अपना डेटा टाइप डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल इंटीजर, और उस इंटीजर की लिमिट है 66,000 टू 66,000, राइट, 2 to the power 32 या 2 to the power 64 वैल्यूज लेने की। अब उसमें हमने डेटा ले लिया 70,000 प्लस 70,000, तो करेक्ट आंसर तो आएगा नहीं। सो दैट ये सारी एरर्स हमको टेस्टिंग और डीबगिंग के टाइम पे पता चलती है। वंस वी हैव रिटन आवर कोड, टेस्ट कर लिया, डीबग कर लिया, कोड लिख लिया, उसके बाद हमको ये सारा का सारा प्रोसेस डॉक्यूमेंट करना होता है। Document means whatever we have written, whatever we have planned, whatever we have designed, we need to document it. हमको उसे एक पेपर में डॉक्यूमेंट करके लिखना होता है, so that after we leave the organization या after even we या after a certain amount of time, हमने जो काम किया है हम उसको एटलीस्ट लिख तो ले। अभी भी जब भी आप कोई भी प्रोग्राम करते हो लैब में, आपने पहले प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को आपने रन किया, उसका क्या इनपुट था, उसका क्या आउटपुट था, क्या कोड था, वो आप एक वर्ड फाइल में सेव करते हो या टेक्स्ट फाइल में सेव करते हो या अपनी कॉपी में लिखते हो। क्यों लिखते हो? कि जब भी आप उसको नेक्स्ट टाइम को आपको जरूरत पड़े तो आपको समझ में आए कि आपने ये स्टेप्स फॉलो किए थे, ये प्रोग्राम लिखा था, ठीक है, सो दैट इट इज अवेलेबल आफ्टर योर प्रोग्रामिंग ऑल्सो। Then we optimize it. At times हम लोग कई बार 10 lines of code लिखते हैं, 100 lines of code लिखते हैं, 1000 lines of code लिखते हैं। उस कोड को रन होने में मान लीजिए 1 घंटा लग रहा है, तो क्या हम उस 1000 lines of code को 10 lines में लिख सकते हैं? वो जो काम 1 आवर में हो रहा था, 1 घंटे में हो रहा था, क्या हम उसको 30 मिनट्स में कर सकते हैं? क्या हम उसको 10 मिनट्स में कर सकते हैं? तो हमें उस तरीके से उसको प्रोग्राम करना है, उसकी कोडिंग को चेंज करना है, एल्गोरिथम को चेंज करना है, स्टेप्स को चेंज करना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। यही सारे स्टेप्स हम इसको बारी बारी रिपीट करते हैं जब तक कि हमारा फाइनलाइज नहीं हो जाता, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है फाइनलाइज नहीं हो जाती है। नाउ कमिंग टू द बेसिक पाइथन प्रोग्राम, Now if I start with what are the Python program, Python के एक प्रोग्राम में क्या क्या होता है? इंपोर्ट स्टेटमेंट, हम जब भी कोई भी लाइब्रेरी को हम यूज करते हैं तो हम उसके लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, राइट। हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसके बाद जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को स्क्रीन में देखने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। Whatever we have done in the program, हमने जो कोड में लिखा है उसको डिफाइन करने के लिए हम कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट्स इसलिए नहीं होते कि हमें दूसरों को बताना है, कमेंट्स इसलिए होते हैं कि हमको एक दिन बाद जब हम उस प्रोग्राम को दोबारा देखें तो हमें पता चले कि हमने इस प्रोग्राम में किया क्या था, ठीक है। दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट कि हमारे प्रोग्राम में कमेंट्स होने चाहिए। इसलिए there are 2 reasons. First, we should be able to know what we have done in the program once we are done, and then it should be easily available to others also. अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करें तो एक पाइथन के प्रोग्राम में क्लासेस और उसकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। Now, what is a Python interpreter and shell?
पाइथन कैसे स्टार्ट करता है, पाइथन की का कोड जो है एक फाइल नेम के साथ और उसका एक्सटेंशन होता है .py। पाइथन का फाइल नेम एक्सटेंशन होता है .py, राइट। वो पहले पार्स होता है, लेक्सिंग होती है। लेक्सिंग मतलब कि हमने जो पाइथन में कीवर्ड्स लिए हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं है। फिर उसका सिंटेक्स चेक होता है जिसको हम पार्सिंग बोलते हैं। उसके बाद एक पाइथन का प्रोग्राम कंपाइल होता है। कंपाइल होने के बाद वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है जिसको हम .pyc बोलते हैं। उसकी एक्सटेंशन होती है .pyc एंड देन दैट इज बी उसको वो रन होता है। So this is how a Python program works. Next is your next is what is your interpreted in compiled language। जो interpreted language होती है आपकी, compiled language होती है जैसे कि आपकी C, C++। C या C++ वो पहले कंपाइलर से मशीन कोड में कन्वर्ट होगी और फिर प्रोग्राम रन होगा। जबकि जो आपका सोर्स कोड वाली फाइल्स होती है, जो इंटरप्रेटर वाली फाइल्स होती है, वो आपकी सीधा इंटरप्रेट होती है और उसको उसका रिजल्ट होता है। इंटरप्रेट मीन्स आपका लाइन बाय लाइन प्रोग्राम चल रहा है, और कंपाइल्ड लैंग्वेज आपका पूरा प्रोग्राम पहले रन होता है, उसके बाद पूरा प्रोग्राम आपका पहले इंटरप्रेट होता है, चेक होता है, मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और फिर रन होता है। Now this is a simple example how what is a compiled language, how it is working। पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ ही सोर्स कोड से मशीन कोड में या बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है। जबकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो होती है वो पहले रीड बाय लाइन, आपका फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट लाइन ट्रांसलेट होती है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट होती है और फिर एग्जीक्यूट होती है। फिर सेकेंड लाइन है वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो रही है एंड देन एग्जीक्यूट हो रही है, एंड देन थर्ड लाइन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज द डिफरेंस। एक कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या मेन डिफरेंस है। We can install the Python through this link. We can use different programming languages, so programming compiler or interpreter which is available online. Important thing is like who developed Python। कई बार हमारे में आता है कि यार Python बनाई किसने, who is the first person who developed Python। So this is the person Guido von Rossum। कई बार हम सोचते हैं यार Python नाम उसने दिया कैसे। Now this person when he was developing Python he was viewing a comedy group, ब्रिटिश कॉमेडी Monty Python, और इसने इस Monty Python के नाम से Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम Python रख दिया। तो दिस इज जस्ट अ हिस्टोरिकल फैक्ट कि भाई Python बनाई किसने, उसने इसका नाम Python क्यों रखा। नाउ स्टार्टिंग विद अ सिंपल Python program, how a Python program starts। Here we have taken an input, using the input function converted it into an integer and write its sum and calculated its sum। This is the output, how it will run। Now the important point is what is the what are the different zens of Python। Zen of Python is like whenever you write a program, whenever you write a Python program, what important thing you need to keep in your mind। First point is beautiful is better than ugly। Beautiful means आपका जो पाइथन का प्रोग्राम है वो दिखने में ब्यूटीफुल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी रिटर्न इन अगली फॉर्मेट। वो ठीक है, अभी आप हम इसकी बात करें तो आप ये देखिए मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा है, जो एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है इन दोनों को अलग अलग लाइन में नेक्स्ट लाइन में लिखा है, फिर सम लिखा है एंड देन प्रिंट लिखा है। आई हैव ऑर्गेनाइज दीज 5 लाइन्स ऑफ कोड in a easily readable format। So this is what the first Zen means, that your program should be visually appealing। एक बार को देखते ही समझ में आना चाहिए कि आपने इस प्रोग्राम में किया क्या है।
Next is simple is better than complex. Simple is better than complex means whatever you are writing, आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना. आपको जरूरी नहीं है एक ही लाइन में सारा कोड लिखना है. आप उसको 4 लाइन में छोटा 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 करके आप उसमें वैसे भी लिख सकते हो. कई बार क्या होता है कि हम लोग नंबर ऑफ लाइन्स रिड्यूस करने के चक्कर में एक ही लाइन में सारा कोड लिख देते हैं, राइट? तो वो उस चीज को हमें अवॉइड करना है. And then the third is readability counts. Your Python program should be readable. Another important thing that we have to take care about while programming in Python is the quotation mark. कोई भी स्ट्रिंग है उसको आपको कोटेशन में लिखना है, सिंगल कोट्स में लिखिए या डबल कोट्स में लिखिए. कोलन का यूज कहाँ करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि पाइथन केस सेंसिटिव है. इंडेंटेशन का ध्यान रखना है और कोई भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो आप उसको उसमें कमेंट्स डाल दें. नाउ कमिंग टू योर फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, यूनिट 1, which consists of 2 lessons. First is your what is data analysis, what is data, and second is your statistical foundation of your data. Its outcomes will be, you will be able to learn what are the different types of data, how you can analyze it, what is measures of central tendency and what is measures of dispersion, and what are the different Python libraries that are available. Now, if I talk about what is data, data is anything, any information, any observation, any fact. कोई भी नंबर है, कोई भी मेजरमेंट है, ग्राफ है, क्वांटिटी है, we call everything as data. Singular, whenever we talk about data, we always talk about its plural form. Its singular form is datum, right? Like marks of a student of marks of English subject of a student, it is a single value, so it is called as datum. If I talk about marks of English subject of whole class, so that is data because it consists of the marks of English subject of whole class. So data is the fact or the information that has been collected for reference and analysis. कोई भी फैक्ट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं और उसको हम डेटा बोलते हैं. डेटा एवरीवेयर, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट? आपका एसएमएस आ रहा है, आपके फोन में एसएमएस आ रहा है, आपके फोन में डेली एसएमएस आ रहा है, ठीक है? अगर किसी के पास वाई का कनेक्शन है उसके ऑफर्स का एसएमएस आ रहा है, किसी के पास एयरटेल का कनेक्शन है उसके ऑफर्स का एसएमएस आ रहा है, आप एक कॉल करते हो उस कॉल में कितनी कॉस्ट लगी है उसका एसएमएस आ रहा है, राइट? आपके पास गवर्नमेंट के एसएमएस आ रहे हैं. कोई भी टेक्स्ट है, एनी टेक्स्ट इज योर डेटा. टेक्स्ट आपकी बुक्स में टेक्स्ट है, आप चैट कर रहे हो, आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, आप अभी टीम्स पे बात कर रहे हो चैट बॉक्स में, अगेन इट इज अ डेटा. क्वेश्चन एंड आंसर्स, आप लोगों के क्वेश्चंस एंड आंसर्स. अगर मैं अभी एमसीक्यू टेस्ट लूं तो सेट ऑफ क्वेश्चंस इज अ डेटा. हर बच्चा अपना एक आंसर देगा, वो एक डेटा बन जाएगा. सोशल मीडिया में आप जितनी भी कमेंट्स डालते हो, पोस्ट डालते हो, इमेजेस है, ऑडियो है, वीडियो है, डेली कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हो, अपनी फैमिली में बात कर रहे हो, अपने वर्क प्लेस में बात कर रहे हो, अगेन इट इज अ फॉर्म ऑफ डेटा. Whenever you go for purchasing, आप दुकान पे जाते हो, ठीक है? दुकान पे आप सामान खरीद रहे हो, उसका बिल हो गया. आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी, उसकी पेमेंट करी, उसका बिल हो गया. ईमेल्स आर द बिगेस्ट. ईमेल्स इज अनदर फॉर्म ऑफ डेटा जिसमें आपका मैसेज हो गया, आप किसको मेल कर रहे हो, किसको मेल कर रहे हो. प्रोग्राम, हम इतनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. सपोज वी हैव 1500 स्टूडेंट्स इन बीए प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशंस. हर बच्चे एक प्रोग्राम लिख रहा है, तो आई हैव अ डेटा ऑफ 1500 प्रोग्राम. हम लोग कुछ भी रिव्यूज देते हैं, फीडबैक देखते हैं, प्ले स्टोर पे हम रिव्यूज देते हैं, हमने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदा उसका रिव्यू देते हैं, उसका फीडबैक देते हैं. दिस इज अ पार्ट ऑफ डेटा.
So if I ask you what is data, data is basically any fact, raw information of any organization, any company, any population, ठीक है, and it includes everything. अब डेटा, इतना सारा डेटा है, इसका यूज क्या है, हम ये सारी चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, इसका यूज क्या है? सबसे पहला यूज है कि इट इन्फॉर्म, इट हेल्प्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग. फॉर एग्जाम्पल, through an online shopping from Amazon or Flipkart or Myntra or any other Blinkit, या आप कहीं से भी, या जोमेटो हो गया या आपका स्विगी हो गया, आप वहां से कुछ भी ऑनलाइन खरीद रहे हो या ऑर्डर करते हो, उससे उस बिजनेस वालों को ये पता चलता है कि विच प्रोडक्ट इज इन मोर डिमांड. क्या हम उसकी कॉस्ट कम करके उसका प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, या कौन सा ऐसा सामान है जो बिक ही नहीं रहा है तो हम उसकी प्रोडक्शन ना करें. तो एक तरह से ये इंफॉर्मेशन बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है. दूसरा, इट हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग द टाइम यूटिलाइजेशन. फॉर एग्जांपल, मेरे पास जोमेटो पे एक ऑर्डर आया, ठीक है, अब उस रूट पे अगर 4 ऑर्डर्स आए हैं तो क्या हमको 4 अलग अलग डिलीवरी बॉयज की जरूरत है? नो, वी कैन यूटिलाइज one delivery boy who will be delivering the order to 5 people. उस रास्ते पे, उस रूट पे जो 5 ऑर्डर्स हैं, उन 5 ऑर्डर्स को एक ही डिलीवरी बॉय डिलीवर कर सकता है, राइट? So that is how you can utilize it, how you can optimize the utilization. It helps in identifying the problem. It enables to development of certain theories, and it helps in understanding what consumers want and what is we can and how we can improve. Now this information कि किस तरीके से ये सारा का सारा डेटा हमको बिजनेस डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है, that process is called as data analysis. Data analysis is a multifaceted process, right? Crucial for extracting valuable insights from diverse data sets. I have a large amount of data sets. हमारे पास large amount of data set है. Let me ask you, is this PPT visible to all of you? Anyone can answer? Yes, ma'am. Yes, Visible. ma'am. Okay, fine. Yes, ma'am. Yes, No, ma'am. ma'am. Hello? Yes, ma'am. Visible. Okay, fine. Now, what is data analysis? Data analysis is multifaceted process to extract valuable insights from data set. हमारे पास जितना भी data set है उसको analyze करना है, उसको देखना है, उसमें से important information निकालनी है. That is your data analysis.
फिर आपको डेटा को कलेक्ट करना है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये डेटा कहाँ से मिलेगा, आपको वो डेटा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, I want to know how many what is the sales of a product. For example, what is the sales of Reynolds pen in Delhi. ठीक है, तो ये तो मेरे को ये पता करना है। अब मुझे इस डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे डिफरेंट सोर्सेज को उठा के डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। जितनी भी दिल्ली में स्टेशनरी शॉप्स हैं, वहां से कितना रेनॉल्ड्स का पेन है, ब्लू पेन है, कितना ज्यादा उसकी सेल्स हो रही है। ऑनलाइन मुझे अमेजन से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट पे रेनॉल्ड्स पेन अगर बिक रहा है तो मुझे फ्लिपकार्ट से डेटा लेना पड़ेगा, या कोई भी अगर स्टेशनरी ऑनलाइन स्टेशनरी है तो वहां से लेना पड़ेगा। तो मेरे पास डिफरेंट सोर्सेज आ गए। ठीक है, दूसरा हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया, जो रेनॉल्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके डिफरेंट होलसेल डीलर्स हैं, उन होलसेल डीलर्स से मैं डेटा ले सकती हूँ कि कितना रेनॉल्ड्स का पेन सेल हो रहा है, ब्लू ज्यादा सेल हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, रेड हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, कौन सा कलर ज्यादा बिक रहा है, राइट। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है मुझे डेटा को क्लीन करना है। कई बार हम लोग डेटा लेते हैं, उसमें फालतू चीजें हो जाती है या उसमें कुछ मिसफॉर्म्ड डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 एक्सेल शीट है, उसमें सेल्स अमाउंट लिखी हुई है। कहीं पे कुछ लोगों ने ऐसे लिखा होगा 1400, कुछ एक्सेल शीट में इस तरीके से होगा 1,400, कहीं पे इस तरीके से लिखा होगा, राइट। कुछ लोगों ने ऐसे लिखा होगा, किसी एक्सेल शीट में इस तरीके से लिखा होगा 1400.00, और कहीं पे खाली होगा, कुछ वैल्यू ही नहीं होगी, नल वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये जो अननेसेसरी डेटा है, ब्लैंक वैल्यूज हैं, कहीं डेटा ही नहीं है, या कहीं किसी ने क्या किया होगा 1400 की जगह वहां पे ABCD लिख दिया होगा। हो सकता है भाई सेल्स का डेटा है, देयर माइट बी सम जंक डेटा, उस डेटा को मुझे हटाना है। तो दैट इज योर क्लीनिंग प्रोसेस। ये डेटा हटेगा, ये नल वैल्यूज डिलीट होंगी। अब ये जो डिफरेंट फॉर्मेट है, ये सारा फॉर्मेट किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। या तो मैं इसको 1400 ऐसे रखूंगी तो सबको ही ऐसे रखूंगी, या मुझे कॉमा लगा के चाहिए तो सब में कॉमा लगेगा, या मुझको ये जो फॉरवर्ड स्लैश और डैश है इसको हटाना होगा। इन एनी केस I have to clean this data and reformat it so that डेटा का सारा डेटा एक ही फॉर्मेट में आ जाए। उसके बाद आई विल स्टार्ट एनालाइजिंग द डेटा। अब डेटा कैसे एनालाइज करते हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। Before going to what are the data analysis process, how we can analyze it, let us study what are the different types of data. पहला डेटा होता है क्वालिटेटिव डेटा एंड सेकंड इज द क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा इज लाइक गुड, बैड, जो हम फीडबैक देते हैं। ठीक है, if for example I have ordered a pizza, the pizza is very hot, the pizza is cold, pizza is very spicy, pizza is not spicy, pizza is good, pizza is bad. So this is qualitative. If I talk about quantitative, I can give this pizza 8 marks out of 10. The other person will give 9 out of 10. The third one will give 5 out of 10. So this is your quantitative cost, right? So quantitative data could be of 2 forms. One is continuous, second is your discrete. Qualitative is of again 2 types, nominal and ordinal. Nominal data is like your gender, right? The population can be divided into 3 genders, male, female and third gender. The people of hair color, the hair color of the people of a certain area. The people may have black color, the people may have brown color, the people may have white color, blonde color, light brown color, right? Then we have ethnicity. So this is qualitative data which can be categorized. Nominal is
कैटेगरी। थर्ड इज योर ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मीन्स आप डेटा को किसी ऑर्डर में लगा रहे हो, कुछ पोजीशन पे लगा रहे हो, कुछ रैंकिंग दे रहे हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। ग्रेड आपकी क्लास हो गई, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। स्टेटस हो गया, लोअर स्टेटस लाइक लोअर इनकम लेवल, मिडिल इनकम लेवल, हाई इनकम लेवल। पोजीशन हो गई, एक क्लास में ही या हम एक स्कूल में हम पोजीशन की बात करते हैं, स्टूडेंट हो गया, क्लास मॉनिटर हो गया, हेड गर्ल, हेड बॉय, टीचर, क्लास टीचर, हेड टीचर, प्रिंसिपल, राइट। दिस आर डिफरेंट पोजीशंस विच आर इन अ हायरार्की, एक ऑर्डर में है। क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें तो डिस्क्रीट, जो कि कंप्लीट होता है, इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। Discrete data will never in fraction. For example, run. एक क्रिकेट के मैच में रन होते हैं, ठीक है, रन पूरा होता है, आधा रन कभी नहीं होता। या तो 100 होगा, 200 होगा, 145 रन, 365 रन, 700 रन। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इंडिया की टीम ने 400.5 रन स्कोर किए। तो दिस डिस्क्रीट डेटा इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। कार्स हो गई, 5 cars, 10 cars, we never say कि मेरे पास तो 1.5 कार है, राइट। हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि हमारे पास कार फ्रैक्शन में है। या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आज की क्लास में 50.5 स्टूडेंट्स आए हैं, 50.1 स्टूडेंट्स आए हैं। नो, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कंप्लीट थिंग। कॉन्टिन्यूअस हो गया जो कि आपका फ्रैक्शन में रहेगा, जैसे हाइट, एरिया, वेट, राइट। I can say कि I have purchased 1.5 kg of tomatoes. I can say I have purchased 0.4 grams of some 0.4 grams of gold, or I can say the height of this tower is 1.75 meters. The height of this building is 5.34 meters. So this is your continuous data. Right, you may get the questions like what is the type of this data, number of students, is it a discrete data or is it a continuous data? Discrete data, students जो है, number of students, it is a discrete data. Quantitative है, मैं उसको quantify कर सकती हूँ, मैं उसको count कर सकती हूँ, मैं उसको numbers में लिख सकती हूँ। Next is डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। आपका न्यूमेरिकल डेटा हो गया, जिसको आप काउंट कर सकते हो, आप नंबर्स में लिख सकते हो, ठीक है। आपका कैटेगोरिकल डेटा हो गया। कैटेगोरिकल डेटा जैसे टाइप्स ऑफ कॉफी हो गई, लाटी, एस्प्रेसो, कैपुचिनो। आपका जेंडर्स हो गया, सब्जेक्ट्स हो गए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, पाइथन, C++, डेटा स्ट्रक्चर्स, दीज आर ऑल कैटेगोरिकल डेटा। शर्ट के साइज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, एक्स्ट्रा स्मॉल। सो दिस इज योर कैटेगोरिकल डेटा। टेक्स्ट डेटा, जितने भी आपके SMS हो गए, चैट्स हो गई, पोस्ट, कमेंट, न्यूज, ब्लॉग, पैराग्राफ, ईमेल, ये सब आपका टेक्स्ट डेटा है। इसमें कोई भी इमेज नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है। टाइम सीरीज डेटा, टाइम सीरीज डेटा होता है जो कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड हो। जैसे आपकी डेट शीट हो गई, पहले ये एग्जाम हो रहा है, इस डेट पे ये एग्जाम हो रहा है, इस डेट पे ये एग्जाम हो रहा है, तो एक टाइम सीरीज हो गया। हिस्टोरिकल डेटा, दिस ईयर, राइट। आपका डेली एवरेज, आप जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, जो वेदर डिपार्टमेंट है, वहां पे डेली की डेली एक एवरेज टेम्परेचर नोट डाउन किया जा रहा है। सो दैट इज योर टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा वो डेटा जो कि एक टाइम के साथ मैप हो रखा है, राइट। फिर आपका हो गया स्पेशियल डेटा, गूगल मैप, GIS, ट्रैवल हिस्ट्री। जैसे हम लोग गूगल में देखते हैं, तो if I go in the Google and I find out कि what locations I have traveled in the past 10 years or in the past 5 years or in the last 1 week, so that is your travel location history. Google Map, हम लोग गूगल मैप चलाते हैं कि अगर हमें
नाउ डेज वी हैव गूगल मैप, हमको कहीं जाना है, रास्ता देखना है तो हम गूगल मैप लगा लेते हैं. सो व्हाट इट इज योर स्पेशियल डेटा. नेक्स्ट इज योर बाइनरी डेटा. बाइनरी डेटा इज ऑलवेज इन टू फॉर्म, या तो 0 होगा या 1 होगा, yes या no, true या false. Have you failed in your class? इसका आंसर या तो yes होगा या no होगा. Is today hot? Is the temperature today hot or cold? Right? Hot है, yes या no. So this is your binary data. The fan is switched on. या तो फैन स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा, बीच में कभी भी नहीं होगा. सिमिलरली विद द लाइट, द लाइट इज ईदर स्विच ऑन और स्विच ऑफ. ऐसे कभी भी नहीं होगा कि लाइट बीच में आधी जली हुई है. So this is your discrete data. Right? The student in the class is either present or absent. So if I have only two values of a data, we call it as binary data. Next is your image data, photographs. Whatever photographs you are uploading on Facebook, Instagram, Twitter, न्यूज वेबसाइट पे फोटोग्राफ्स होती है. ये वेबसाइट, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे इतने इवेंट्स होते हैं, वहाँ की फोटोग्राफ्स हैं. सो दिस ऑल इज योर इमेज डेटा. ऑडियो डेटा, जैसे हम लोग आई एम स्पीकिंग, सो दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड, सो दिस इज योर ऑडियो डेटा. राइट? songs on the radio, songs in the cassettes or these various audios. आपका फोन में रिकॉर्डिंग हो रही है, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, दैट इज योर म्यूजिक. राइट? आप लोग कोई भी चैटबॉट खोलते हो या गूगल पे आप सर्च इंजन लगाते हो, यू कैन यूज दिस वॉइस इनेबल्ड. आप उसमें बोलते हो एंड देन इट स्टार्ट गिविंग यू दी रिजल्ट. आपका एलेक्सा में क्या है, ऑल एलेक्सा में वट एवर कमांड यू आर गिविंग, इट इज योर ऑडियो डेटा. नेक्स्ट इज योर वीडियो डेटा. योर सीसीटीवी डेटा हो गया, आपकी यूट्यूब की वीडियोस हो गई, यू हैव योर एनी ऑफ योर वीडियो डेटा, मूवीज हो गई, शॉर्ट वीडियोस हो गया, सो दैट इज योर वीडियो डेटा. अनदर फॉर्म इज योर सेंसर डेटा. सेंसर लाइक आपके जो जीपीएस डिवाइसेस होते हैं, व्हीकल्स में लगे हुए हैं, कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है, उसकी स्पीड रिकॉर्ड हो रही है, एक्सेलेरोमीटर्स हैं, टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है, तो डिफरेंट सेंसर्स हैं. सो दैट इज योर सेंसर डेटा. जो हमारे डिफरेंट सेंसर से कलेक्ट हो रहा है, इट इज योर सेंसर डेटा. एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस वेराइटी इज योर बिग डेटा. बिग डेटा इज बेसिकली ह्यूज डेटा सेट which is large in volume, different variety. अभी हमने जितने भी 10 टाइप्स के डेटा टाइप्स देखे, वो सारा मिला के बिग डेटा हो रहा है. एंड इट इज नॉट इन एक एक्सेल शीट में आ गया या 10,000 डेटा हो गया. नो, इट इज इन गीगाबाइट, 1 GB, 5 GB, 10 GB, 500 GB, 1 टेराबाइट. उस वॉल्यूम में, इतनी ज्यादा वॉल्यूम में ये आपका बिग डेटा हो गया. नेक्स्ट वी हैव वेलोसिटी. वेलोसिटी मीन्स it keeps on changing, right? Okay, now the question comes, what are the different sources of data? हम डेटा कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? There are two sources. एक आपका प्राइमरी सोर्स हो गया और एक हो गया आपका सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स आपने डायरेक्ट सर्वे कराया, पर्सन टू पर्सन लिया, फीडबैक फॉर्म लिया, टेलीफोन से लिया, मेल से लिया, आपने एक ऑब्जर्वेशन की. जैसे हम लोग फिजिक्स की लैब में करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं, केमिस्ट्री लैब में लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, या हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन, आज बारिश होगी, तो इट इज एन ऑब्जर्वेशन. ठीक है, कल शाम को बारिश हुई थी, कल शाम मौसम ठंडा था, परसों ऐसा था, तो दिस इज अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन. एक्सपेरिमेंटल डेटा. एक्सपेरिमेंटल डेटा हो गया आपका कि आप जो आप लैब में कलेक्ट करते हो. उसके बाद आपका एक सोर्स होता है सेकेंडरी. ये तो हमने डायरेक्ट कलेक्ट किया. ये जो प्राइमरी डेटा है ये हमने डायरेक्ट कलेक्ट किया. फिर हमारे पास आता है एक सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा हमने एक लाइब्रेरी से जाके ले लिया. देखो,
या तो मैं खुद जाके लाइब्रेरी में जाके कितनी सारी बुक्स हैं वो सारी की सारी बुक्स के नाम नोट डाउन कर रही हूँ, सो दैट इज अ प्राइमरी सोर्स। दूसरा तरीका हो गया आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरियन, उस लाइब्रेरियन के पास जाके मैं सारी बुक्स का डेटा ले रही हूँ, सो दैट इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। आई एम कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी एडवर्टाइजिंग मीडिया से ले लिया, सो दिस इज योर सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। जो डेटा डायरेक्टली कलेक्ट किया जा रहा है दैट इज प्राइमरी। अब प्राइमरी से कलेक्ट करके एक रिपोजिटरी में डाल दिया और उस रिपोजिटरी से डेटा लिया जा रहा है वो सेकेंडरी डेटा। अब बात करते हैं, हमने इतना सारा डेटा टाइप ले लिया, हर जगह से डेटा कलेक्ट कर लिया। अब बात करते हैं हम डेटा रैंगलिंग की। ना व्हाट इज डेटा रैंगलिंग? डेटा रैंगलिंग हो गया, मेरे पास इतना सारा डेटा है, उस डेटा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एरर होगी, राइट? कुछ अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने अपनी डेट ऑफ बर्थ 1999 की जगह 1499 डाल दी, इट इज अनएक्सपेक्टेड वैल्यू 1499। या किसी ने अपना फोन नंबर सपोज किसी ने अपना फोन नंबर 10 डिजिट की बजाय 20 डिजिट में दे दिया। किसी ने अपना मार्क्स जो है 56 की जगह 156 लिख दिया। सो दीज आर अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज, राइट? कहीं कहीं पे कई बार डेटा में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, कहीं कहीं पे इररेलेवेंट डेटा होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स डेटा में होती ही होती है। वी कैन नॉट हैव एक्यूरेट डेटा। इन सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे अभी हमने बात की, कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेगा DD MM YY, right? Someone will write the date of birth as 28 Feb 2004। कोई ऐसे डेट लिखेगा 28 Feb 2004। कोई बच्चा डेट ऐसे लिखेगा 28.02.04, राइट? अब ये है तो डेट ही, ठीक है, फॉर्मेट वगैरह में डिफरेंस है लेकिन डेटा तो है। अब इस डेटा को एक सिंपल फॉर्मेट में या एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में लाने के लिए हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेटा रैंगलिंग। डेटा रैंगलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग and transforming raw data into a desired format। और क्यों सब चाहिए हमको एक ही फॉर्मेट में, जिससे कि हम इजीली एनालाइज कर सके, डिसीजन प्रॉपर डिसीजन ले सके, राइट? तो डेटा रैंगलिंग के बेसिकली 6 स्टेप्स है। हमको डेटा डिस्कवर करना है, फाइंड आउट करना है इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको स्ट्रक्चर करना है, क्लीन करना है, एनरिच करना है। एनरिच करना है, कोई डेटा मिसिंग है तो उसको ट्रांसफॉर्म करना है या कुछ उसमें ऐड करना है, या कोई डेटा डिफरेंट फॉर्मेट में है तो उसको एक ही फॉर्मेट में लिखना है। फिर उसको वैलिडेट भी करना है कि सारा का सारा हमने जो फॉर्मेटिंग की थी, रीफॉर्मेट किया था, वो सारा हो गया है कि नहीं हो गया है। And then we publish it, we make it for use for the analytics। डेटा रैंगलिंग के एग्जांपल्स हो गए, जैसे मैंने डेटा कलेक्ट किया 5 डिफरेंट शॉप्स से फॉर द सेल्स ऑफ रेनॉल्ट पेन। वो सारा का सारा सबका अलग अलग फॉर्मेट होगा। जैसे मैंने बताया किसी ने 1400 लिखा है, किसी ने 1,400 लिखा है, किसी ने 1400 को फॉरवर्ड स्लैश ऐसे लगा के लिखा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, सारे डेटा सोर्स को पहले मर्ज कर रही हूँ, एक ही फाइल में लेकर आ रही हूँ। 4 अलग अलग एक्सेल शीट थी, चारों को एक ही एक्सेल शीट में मर्ज कर दिया। उसके बाद एम्प्टी सेल्स को निकाला या फिल किया या उनको हटा दिया।
इररेलेवेंट डेटा है, किसी ने नंबर ऑफ सेल्स में लिख दिया ABC, इस इररेलेवेंट डेटा को डिलीट करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, आउटलायर्स आ जाते हैं डेटा में। फॉर एग्जाम्पल सेल्स ऑफ रेनॉल्ट पेन समवन हैज रिटर्न एज 14 लाख, 14 लाख के रेनॉल्ट पेन बेचे, जहां पे 4 दुकानें सिर्फ 1400 की भेज रही हैं, 1500 के पेन्स बेच रही हैं, वहां पे एक शॉप ने लिख दिया 15 लाख, राइट। वन शॉप हैज सेड दैट आई हैव सेल्ड 15 lakh of पेन। Now this is an outlier, right? This is an unexpected value, ये outlier है। Similarly everyone is writing date as 31st of March, ठीक है, हर कोई डेट लिख रहा है 31st of March, किसी ने डेट लिख दी 31st of February। What it is an unexpected value, it is an outlier, this is not possible, right? या ये कुछ अलग ही हटके डेटा है। तो इस तरीके के डेटा को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, राइट, और उसको या तो हटा देते हैं बिकॉज दिस इज नॉट मेकिंग एनी वैल्यू टू द डेटा एनालिसिस, राइट, और इट विल सीवियरली इम्पैक्ट द डेटा एनालिसिस। अब डेटा हैंडलिंग के यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं? कॉर्पोरेट फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए, टू एंश्योर दैट वी हैव एक्यूरेट डेटा, बिजनेस कंप्लायंस के लिए हम लोग डेटा हैंडलिंग यूज करते हैं, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस के लिए, टाइम स्पेंड। जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमको डेटा को, ये जो नल वैल्यूज हैं, एम्प्टी डेटा है, रीफॉर्मेट करना है, ये सारा का सारा हम लोग डेटा एनालिसिस से पहले कर लेंगे, जिससे हमारा डेटा एनालिसिस इजीली हो जाए। उसके बाद हम डेटा ट्रेंड्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज योर व्हाट आर द डिफरेंट डेटा प्रिपरेशन प्रोसेस। डेटा कलेक्शन, फर्स्ट स्टेप टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सोर्सेज आपके हो गए प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज। आपका एक हो गया प्राइमरी सोर्स, एक हो गया आपका सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। डेटा को प्री प्रोसेस करना है, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, क्लीनिंग करना है, एम्प्टी डेटा को हटाना है, सैम्पलिंग करनी है। सैम्पलिंग मीन्स आपके पास 1 लाख रोज का डेटा है, 1 लाख एक्सेल शीट, 1 लाख का डेटा, आप उसमें से 1 लाख के डेटा को ना चेक करके आपने उसमें से कुछ 100 डेटा को चेक कर लिया, ठीक है, सो दैट इज योर सैम्पलिंग। फिर आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग स्केलिंग करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं या एग्रीगेशन करते हैं। दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट स्लाइड। So what is scaling, what is normalizing and what is data aggregation. Next coming to data analytics. What is data analytics? Data analytics आपके हो गए descriptive, what happened, diagnostic, why did it happen, predictive, what will happen, कि अब आगे क्या होगा, that is your predictive, and prescriptive is how we can make it happen या how we can prevent it to happen. For example, a person fainted down in the while working, right? Now this is descriptive, fainting down of a person. Diagnostic, why did it happen? बीपी हाई हो गया या ब्लड प्रेशर लो हो गया या सम प्रॉब्लम। प्रिडिक्टिव, अब आगे क्या होगा, क्या वो अगली बार फेंट होगा, नहीं होगा। प्रिस्क्रिप्टिव, हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
Okay. Starting it again. So what are the different types of data analytics? Hope I am audible to all of you. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So different types of data analytics. What is descriptive? What happened? Diagnostic. Why did it happen? Predictive. What will happen next? हम predict कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा. Prescriptive कि हमें आगे क्या करना चाहिए कि जिससे कि ये आगे या तो इंक्रीज करे, जैसे प्रॉफिट बढ़े और लॉस कम हो, राइट? First is your descriptive data analytics, which includes finding out mean, average, median, mode. It includes finding out standard deviation, percentile. Next is your data visualization. You are drawing histogram, box plot, scatter plot. You are performing distribution analysis like normal distribution, skewness, kurtosis. You are finding out correlation. Correlation is you have two data, for example, number of you have two variables x and y, and what is the association with it. For example, what is the relation between your marks in data visualization and data structures? There is no correlation, right? If I ask what is the relation between the sales of a product, right, it depends on to the what is the relation between the sales of sweater with reference to the season. राइट, समर सीजन में स्वेटर की सेल्स नहीं होगी, कोट की सेल्स नहीं होगी, विंटर सीजन में स्वेटर कोट की सेल इंक्रीज होगी. सो दिस सीजन एंड द सेल ऑफ woolen clothes is related to each other, right? There is some relation into it, so we call it as, we need to find out is there any relation. That is called as a correlation analysis. Next is your pattern recognition. हम कुछ एक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे किसी टाइम सीरीज डेटा में हमने पैटर्न फाइंड आउट किया, स्पेशियल एनालिसिस से हमने पैटर्न फाइंड आउट किया. फॉर एग्जांपल स्पेशियल एनालिसिस की मैं बात करूं, हम लोग गूगल मैप पे जा रहे हैं, राइट? नाउ वी हैव कम टू नो कि दैट ड्यूरिंग 8 o'clock सुबह 9 बजे से 10 बजे तक इस रास्ते पे जाम रहेगा, राइट? बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक बहुत स्लो हो जाता है या बहुत ज्यादा व्हीकल्स आ जाते हैं. एवरीवन इज गोइंग टू द ऑफिस ड्यूरिंग दैट टाइम. उसके बाद 10 बजे के बाद 10 बजे से दोपहर के 4 बजे तक कोई ट्रैफिक नहीं होगा. फिर उसके बाद 5 बजे से 7 बजे तक इस रास्ते पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा. अब बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होगा. क्यों होगा? क्योंकि सारे ऑफिसेस 5 बजे बंद हो रहे हैं. एवरीवन इज टेकिंग आउट देयर व्हीकल्स. हर कोई अपने व्हीकल्स को ऑफिस से निकाल के घर के रास्ते पे लेके जा रहा है, राइट? उसके बाद सो दिस इज योर टाइम सीरीज डेटा या एक स्पेशल डेटा हो गया कि इस रूट पे इस टाइम पे जाम होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ट्रेड फेयर की, राइट? दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है फॉर अ वीक और 2 वीक, और उस टाइम पे प्रगति मैदान के आसपास, क्योंकि वहां पे ट्रेड फेयर लगा है, तो वहां पे आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी, वहां पे काफी सारे लोग होंगे, बहुत सारे व्हीकल्स होंगे, तो उस एरिया के अराउंड ट्रैफिक जाम मिलेगा, जो कि ट्रेड फेयर के टाइम पर ही मिलेगा, राइट? सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ एनालिसिस, इट इज अ सॉर्ट ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन. वी आर आइडेंटिफाइंग सर्टेन पैटर्न. अभी जैसे हम बात करेंगे कि देयर इज अ फेस्टिवल, होली है, होली के पास क्लास की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने घर चले जाएंगे, बहुत सारे बच्चों का मन नहीं करेगा. सिमिलरली दिवाली के आसपास जितनी भी क्लासेस होगी उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स होते हैं वहां पे वो 200 हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिवाली की तैयारी कर रहे होंगे, शॉपिंग करने चले जाएंगे. कुछ अपने जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं वो अपने घर वापस, मतलब दे विल गो टू देयर होम टाउन. सो दिस इज अ पैटर्न कि हाँ भाई इस टाइम के अराउंड, या ये एक पैटर्न बन गया है कि यहाँ पे इस टाइम पे ये काम होगा. Now this was all about your lesson 1, right?
what is data, what are the different types of data, data analysis क्या होता है, data analytics क्या होता है. यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना है, they can ask, because I have finished one lesson as per your SLM, so any of the student who has any question. हेलो मैम, डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस मतलब? डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस होता है कि हमारा डेटा किस तरीके से फैला हुआ है. जैसे मैं अगर बात करूं, सेकेंड, अगर मैं बात करती हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन पाइथन में बच्चों के मार्क्स, ठीक है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. आउट ऑफ 100 बच्चों की क्लास है, तो उसमें से सिर्फ 10 बच्चों के मार्क्स होंगे जो कि 90 अबव होंगे, ठीक है. 10 बच्चों के मार्क्स होंगे जो कि 40 से नीचे होंगे. मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स 50 और 70 के बीच में होंगे. तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन कि हमारा डेटा किस तरीके से जो मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, किस तरीके से फैला हुआ है. आई जस्ट शो यू एन एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड. जैसे ये एक लाइन हो गई, यहाँ पे मार्क्स हो गए 10, 20, राइट, 50, 100, और ये हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट. अब मैं बात करती हूँ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की. तो जो डेटा है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा. वी कॉल इट एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कि 10 बच्चों के नंबर होंगे ऐसे जो कि 90 अबव होंगे. कुछ 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स बिलो 20 होंगे. मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स 40 और 70 के बीच में होंगे, राइट. So this is the distribution of data. We call it as how the data is being distributed. ओके मैम, क्लियर.